امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس میں. اور آج کے اس پروگرام میں جو موضوع ہے, جو ٹاپک ہے, عنوان ہے زندگی کا تاج ہے. مکاشفہ دوسرے باب کی 10ویں آیت میں سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور اس آیت مقدسہ کی روشنی میں خدا کے خادمین ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. زندگی کا تاج اور شوکت کا تاج اور حشمت اور بزرگی کا تاج. اور شروع میں پاسٹر فیصل نے کہا کہ یہ وہ تاج ہے جو فتح مند لوگوں کو جو ون کرتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے ایسے دوڑو کہ جیتو, کیونکہ ہماری جو فتح ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے, بلکہ جو یسوع مسیح نے ہمیں فتح اور غلبہ دیا ہے اس کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید اس حوالے سے جانے سیکھیں. آئیے خدا کے خادم فیصل صاحب سے جو ہے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں. جی فیصل صاحب. شکریہ پار صاحب ایک دفعہ پھر. جی پار صاحب, جیسے کہ زندگی کے تاج کی بات چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ بائبل مقدس میں جہاں جہاں پر بھی تاج ہے, پار صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے. تو زندگی کا تاج ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اس کی وجہ پیچھے ہی لکھی ہوئی ہے, وفادار رہے. بالکل, بڑی اچھی وفاداری سب سے اہم ترین چیز ہے. اور وفاداری ہے کیا؟ دکھوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں اور تکالیف میں جڑے رہنا ساتھ, دیانتداری کے ساتھ. یہ وفاداری کو شو کرتی ہے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب تک حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر تو کئی اداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں جب تک حالات اچھے ہوتے ہیں تب تک لوگ وفادار ہوتے ہیں. جیسے ہی حالات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ وفادار نہیں رہتے. وفاداری بھی ختم. لیکن مسیح خداوند کی ذات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو مسیح خداوند زمین پر دکھ آئے ہیں, مصیبتیں آئیں, مسیح خداوند چیلنجز میں سے گزرے ہیں, اور یہاں تک کہ دیکھیں صلیبی موت دوبارہ کی ہے, کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا, مسیح خداوند مصلوب ہوئے, لیکن قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں. اس جی اٹھنے کے بعد اب مسیح خداوند کے ساتھ لوگ زیادہ وفادار ہو گئے ہیں. لوگ پہلے بھی وفادار تھے لیکن اب وفاداری زیادہ ان کی نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہمیں بائبل مقدس میں پولس رسول تیموتھیوس کے خط میں اس کے 4 باب میں, دوسرا تیموتھیوس کا خط اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میں بیان کرتے ہیں. اینڈ ٹائم ان کا چل رہا ہے, اور کہتے ہیں کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں, میرے کوچ کا وقت آ پہنچا, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا, میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا, اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. جب وہ زمینی زندگی کی بات کر رہا ہے تو زمینی زندگی میں چیلنجز ہیں, دکھ ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن یہ خدا کا خادم قائم رہا ہے. زندگی میں اس نے تاج کی بات ہی نہیں کی. جب اینڈ پر آیا ہے تو خداوند مسیح جب اینڈ پر عدالت کے دن اسے کھڑا کرے گا اپنے حضور میں, اس دن وہ بات کر رہا ہے خداوند مجھے راست بازی کا تاج دے گا. اور یہاں پر خداوند مسیح سمرنا کی کلیسیا میں خداوند مسیح کہتے ہیں زندگی کے تاج کو وہ حاصل کرے گا. اس کا مطلب ہے وہاں پر خداوند ریوارڈ دے گا. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو ایماندار رہے ہیں, جو وفادار رہے ہیں, جو خداوند کے ساتھ جڑے رہے ہیں. لیکن زمین پر ابلیس آ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا. ایک کشتی ایماندار کی ابلیس کے ساتھ روحانی عالم میں چل رہی ہے. جو روحانی عالم میں فاتح بنے رہتے ہیں ان کے لیے اینڈ ٹائم میں ریوارڈ ہے. اگر انسان کہے کہ زمین پر ہی میں ریوارڈ حاصل کروں تو یہ بات ناممکن سی ہمیں نظر آتی ہے. شاگرد بھی مسیح کے پاس آگے کہتے ہیں خداوند ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں, ہم تیرے ساتھ معجزات بھی دیکھ رہے ہیں, کاروبار ہم نے چھوڑ دیا ہے, کچھ بھی نہیں ہمارے پاس, ہم تیرے ساتھ جدھر تو جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں. تو جھیل میں سفر کرتا ہے کشتی پر, ہم بھی تیرے ساتھ ہوتے ہیں. تو مردے جلاتا ہے, سارا کچھ ہم تیرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو اوپر جانے کی باتیں کر رہا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. خداوند مسیح کے جملے بڑے کمال تھے. مسیح خداوند ہمیشہ کی زندگی کی آسمان پر بات کر رہے ہیں. زمین پر کئی گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی. اور یہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے جو مسیح خداوند وہاں پر بات کر رہے ہیں. زمین پر بھی خداوند اپنے مقدسین کو کئی گنا دینے کی
कुदरत रखता है, लेकिन ज़मीन पर बारहा हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी बयान करता है कि चैलेंजेस हैं, लेकिन एक दिन खुदावंद मुझे ये ताज देगा। और इसके अलावा स्तिफनुस की ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं, इसका मतलब भी ताज है। तो इसकी ज़िंदगी पर जब हम गौर करते हैं तो चैलेंजेस हैं, अदालत में से खड़ा कर दिया गया है, वहाँ पर ये खुदावंद का कलाम बयान कर रहा है, दलेरी के साथ खुदावंद के साथ वफादार है एक डीकन, लेकिन खुदावंद के साथ ये वफादार है। और वफादारी का आलम ये है, कलाम को बयान करने वाला ये शख्स है, और जब ये कलाम को बयान कर रहा है तो लोगों को वो कलाम अच्छा नहीं लगता, वो इसे पकड़ते हैं और प्लानिंग उनकी ये होती है हमने इसे मारना ही मारना है हर सूरत में। जमीन पर दुख है और इसे लेकर जाते हैं चौराहे पर, साइडों पर लोग खड़े हैं, पत्थर उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं। अगरचे पत्थर भी पकड़े हुए हैं, लेकिन ये फिर भी इसके अंदर ईमान है, इसके अंदर वफादारी की स्पिरिट है। ये आसमानी जलाल को देख रहा है, जमीन के दुखों को ये नहीं देख रहा। इसकी नजरें खुदावंद की जात पर लगी हुई हैं, जमीन पर नहीं। जब इसकी नजरें खुदावंद की तरफ लगी हुई हैं, आसमान की तरफ देख रहा है, तो कहता है मैं आसमान को खुला हुआ और यसु नासरी को खुदा बाप की दाहिनी तरफ अपने कदमों पर खड़ा हुआ देख रहा है। तो ईमानदार के लिए ये सबसे बड़ा इनाम या एजाज या बात है या इनाम है या ताज है कि उसका खुदावंद उसके लिए अपने कदमों पर खड़ा हो, प्रोटोकॉल दे रहा है। हाँ जी, प्रोटोकॉल दे रहा है। जमीन के बादशाहों को देख ले, जमीन के बादशाह के लोग जो हैं उसने प्रोटोकॉल दे रहे हैं। बादशाह कभी लोगों को प्रोटोकॉल नहीं जमीन पर देता, लोग प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है जो खुद अपने लोगों को प्रोटोकॉल दे रहा है, उनके लिए जो उसके लिए दुख उठाते और वफादार। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो उनके लिए ये प्रोटोकॉल है, खुदावंद मसीह उन्हें बरकत देता है, और ये सबसे बड़ी उनके लिए एजाज की बात है। किसी ने पूछ लिया जी एक खादिम से कि हमें तो हमारी जन्नत का पता है, क्या क्या वहां पर होगा, तो आपकी जन्नत क्या है? उसने आगे से कहा जहां पर हमारा मसीह है वहां पर हमारी जन्नत है। हमारा मसीह जहां पर है वहां पर वही हमारा फिरदौस है, सब कुछ। हाँ जी, क्योंकि वो मालिक है, हर चीज का खालिक भी है। वो हर एक चीज को अपनी कुदरत के सबब से तख्लीक करने वाला है, अपनी कुदरत के सबब से बनाने वाला है। सो आज मौजूदा हालात में जमीन पर वफादार रहना ये सबसे बड़ी बात है। आज हम लोगों को देखते हैं वो वफादारी की वैसी स्पिरिट नहीं है। बहुत अच्छे, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने तो वफादारी है कि वफादारी लोगों में। हाँ जी, वफादारी की स्पिरिट जब तक लोगों में नहीं है तब तक वो डिमांड नहीं कर सकते कि एंड पर हमें ये ताज मिलेगा, एंड पर खुदावंद हमें रिवार्ड देगा, तब तक डिमांड नहीं कर सकते। खुदावंद स्मुरना की कलीसिया से यही कह रहा है, खुदावंद कह रहा है तुम मुसीबत उठाओगे, इबलीस तुम्हें आजमाएगा, 10 दिन तक तुम्हारी मुसीबत होगी, लेकिन तुमने कायम रहना है और वफादार रहना है, और वफादार जो रहेगा उसे जिंदगी का ताज दिया जाएगा। आज लोगों के लिए जरूरत है कि वो वफादार रहें। पर सब बहुत दफा हमने देखा है कि जब लोगों के खानदानों में, आपका भी बहुत ज्यादा तजर्बा होगा, जब मुसीबतें आती हैं, जब तक खुदावन उनकी जिंदगी में बरकत देता है, वो खुदावन के साथ वफादार रहते हैं, वो कहते हैं कि खुदावन का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है जी खुदावन का, खुदावन ने हमें बहाल किया। लेकिन जैसे ही पर सब उनकी जिंदगी में दुख आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, या इबलीस उन्हें परेशान करता है, या तस्वीरें उन्हें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं, तो वफादारी एक लम्हे में उनकी जाती रहती है। और पर सब एक ऐसा तजर्बा हुआ जिंदगी में कि हम खुदावंत के साथ चलना शुरू हो गए, निजात हमने पाई, तो इबलीस हमारे घराने में हमें बहुत परेशान कर रहा था। और परेशानी का ये आलम था कि जो पैसे हम घर में जमा करते थे, भाई और मेरे सिस्टर की शादी थी, तो जो पैसे जमा किया करते थे उन पैसों को इबलीस चुरा लेता था। और कई दफा ऐसा भी होता है, हाँ जी, और आप भी हमारे घर में विजिट करते रहे। हाँ जी, तो ऐसी हालत थी कि इबलीस चुरा कर ले जाता था पैसे। और ऐसा हुआ कि 6 लाख हमने जमा किया शादी के लिए, 2 माह के बाद शादी है, तो इबलीस आकर सारा ही ले गया। ये 26 दिसंबर 2014 की बात है। तो खादिम आए, बहुत सारे पासबान आए, देखकर हैरान हो जाते थे ये कैसे हो सकता है। तो इसके बाद चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन लोग जो इर्द गिर्द के थे वो कहते थे आए हम फलां के पास ले जाते हैं, आपको पता चल जाएगा आपके पैसे कहाँ पर है, आपके पैसे कहाँ पर है। लेकिन मेरी अम्मी और मेरे अब्बू वफादार है, उन्होंने कहा जो जाता है वो चला गया, लेकिन खुदावंद हमें ज्यादा देने की कुदरत है। सो वफादारी बहुत जरूरी है। और कई लोगों को हमने देखा भी है, अगर थोड़ी सी मुसीबत आती है वो डी ट्रैक हो जाते हैं, खुदावंद को छोड़ देते हैं। और हमें बाइबल मुकद्दस में भी मिलता है,
जब पतरस को नजर आ रहा था कि मसीह खुदावंद तो पकड़ा गया, जी अब हो सकता है मैं अभी पकड़ा जाऊं, जी जी जी, तो उसने 3 दफा इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, तो कई दफा लोग डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इनकार कर देते हैं फिर खुदावंद जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो इनकार ना करें और खुदावंद के साथ जुड़े रहें जी। तो खुदावंद एंड पर बड़ी बरकत है। जमीन पर ईमानदार को चाहिए दौलत उसे मिले या ना मिले, शोहरत उसे मिले या ना मिले, और दुनिया की चीजें उसे मिले या ना मिले, लेकिन इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मेरा खुदावंद वो है जो आसमान पर मुझे हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। मेरा खुदावंद वो है जो हमेशा की जिंदगी का ताज देने की कुदरत रखता है। मेरा खुदावंद वो है जब तक हम उसके साथ वफादार रहेंगे बरकत हमारी जिंदगी में होंगी, दिल के अंदर इत्मीनान होगा, दिल के अंदर शादमानी होगी, और खुदावंद की कुदरत चारों तरफ से इंसान को, ईमानदार को अपनी लपेट में लिए रहेगी, और ईमानदार हमेशा खुदावंद के साथ वफादार रहेगा। आमीन। थैंक यू ब्रदर फैसल, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू फरमाई, गुफ्तगू की और नाजरीन की रहनुमाई की। मैं ईमान रखता हूँ अजीज़ों कि आप सब बरकत हासिल कर रहे हैं, और आज ख़ास तौर पर वफ़ादारी जो है उस हवाले से जो चीज़ खुदा का पाकरू मेरे दिल में भी डाल रहा है कि पास्टर्स को, लीडर्स को, खुदाम को, कलीसिया को, हम सब को वफ़ादार रहना है, क्योंकि खुदा कामयाब लोग नहीं चाहता, वफ़ादार लोग चाहता है। और आज इसका बड़ा फुकदान है, वफ़ादारी, फेथफुलनेस जो है वो लोगों में बहुत कम नज़र आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि पास्टर जावेद साहब से भी इस हवाले से मज़ीद जाने सीखें। जी पास्टर जावेद तबस्सुम साहब। हाँ जी, मैंने कुछ 2-3 बातें और ऐड की हैं बड़ी खूबसूरत। एक तो मैं हवाला पढ़ूँगा यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 62वां बाब जी और 30वीं आयत। और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शहाना अफसर होगी। खुदा अपनी कौम को कह रहा है, यशायाह नबी की मार्फत एक पैगाम है कौम के लिए, कौम बनी इसराइल के लिए, जी कि अगर तुम खुदा के साथ ठीक चलोगे, वफादारी से गैर मबूदों के पीछे नहीं जाओगे, तो तुम्हारा मर्तबा खुदा की नज़र में ताज की मानद होगा, जैसे खुदा के हाथ में ताज है। मैं खुदावंद फरमा रहा है कि मैं तुम्हें इतनी इज्जत दूंगा जैसे किसी के सर पर ताज होता है कौमों में, और खुदा ने ऐसा किया। लेकिन जब वो इनकार करते थे, गैर मबूदों के पीछे जाते थे, इससे डबल वो जिल्लत भी उठाते थे ऐसे ही। और आज अगर हम इस दौर में देखें, जो लोग खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा माशरे में उनको इतना मकाम बख्शता है जी। और आप इसको देख भी सकते हैं कि खादम का आज कितना मकाम है, जो सही खादम खुदा के साथ दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं, कि उनके सामने बादशाह, वजीर आजम, बड़े बड़े लोग कलाम सुनते हैं, राइट, बड़े बड़े लोग उनसे दुआ करवाते हैं जब बीमार होते हैं। तो ये कितनी आनंद की बात है। वाह, जब हम खुदा के हाथ में हैं हमें आनंद मिलता है। और फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बात है ना ज़िंदगी के ताज की, इसी के ताल्लुक से आगे 30वें बाब में लिखा है, मुकाशफा की किताब में जी 10वीं आयत है 30वें बाब की। ओके। चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूँगा, जो ज़मीन के रहने वालों की आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ जी। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। अब यहाँ ताज का मफहूम और है, यानी खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे यहाँ ताज दे दिया। मतलब ये है कि मैंने तुम्हें ज़मीन पर इज़्ज़त, मकाम, हशमत, शोहरत दे दिया। ये ताज है जो तुझे मेरे कलाम पर अमल करने से, मेरी मुनादी करने से, नजात का पैगाम देने से मिला है। तुझे आनर मिला है। अब इस आनर की, इस हशमत की, इस इज़्ज़त की तूने कदर करनी, और ये कभी छिन ना जाए। और ये छिनती कब है? वाह, कि जब वही ईमानदार गुनाह में गिरते हैं, वो खुदा से दूर चले जाते हैं, तो फिर उनका हाल वो हो जाता है, उस नमक इमानत जिसका मज़ा जाता रहता है और वो बाहर फेंका जाता है। तो इसका मफहूम भी ये है कि ताज जो हमें यहाँ मिलता है ये खुदा की तरफ से एक आनर है। लेकिन जो अगली बात है ज़िंदगी का ताज, इसके साथ मैं एक रेफरेंस जोड़ना चाहता हूँ। यूहन्ना के ख़त में लिखा है, पहले ख़त के अंदर रसूल फरमाता, बड़ी खूबसूरत बात, आए भाइयों अब हम खुदा के फर्जंद हैं, अभी तक ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि वहाँ आसमान पर क्या कुछ होंगे जी। अब हम इतना जानते हैं कि जब वो ज़ाहिर होगा हम उसकी तरह पाक होंगे।
अब ये कितना ऑनर है। वो कहता ज़मीर पर हम उसके बेटे बेटी हैं, आसमान पर पता नहीं क्या कुछ होंगे। पोशीदा बात है, राज किया जा सकता, ठीक है ना, राज की बात है। अब इसका मतलब यह है कि आसमान पर इससे ज्यादा ऑनर मिलेगा, ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी हमें ईमानदारों को, तो ये ताज से कम नहीं। जिंदगी का ताज ऐसी जिंदगी जो इज्जत वाली। यहाँ बादशाहों की जिंदगी, उनके ताज गिर जाते हैं, बादशाही छीनी जाती है, वह हम बादशाह कहलाएंगे और वो हमें हशमत वो छीनी नहीं जाएगी, वो ऑनर छीना नहीं जाएगा, वो रिस्पेक्ट छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ ये नीचे वाला निज़ाम नहीं होगा। वहाँ ये बड़ी बात है, ज़मीन पर बेटे बेटियाँ, वहाँ बाप के दानी हाथ होंगे, बाप के रूबरू बैठेंगे और जलाली बदन होगा और खुशियाँ खुशियाँ होंगी, ये ताज से कम नहीं होंगी। लेकिन हमने जो यहाँ ताज मिला इज्जत आनर का, इसको भी कायम रखना है, ये छीनना जाए। बिल्कुल। और जो खुदा देने वाला वफादारी का ताज जिंदगी का, उसका मतलब ये है कि खुदा के पास जब जाएंगे तो ऐसी जिंदगी मिलेगी, सही है, जो कायम रहने वाली, फॉर एवर, एटर्नल लाइफ और इज्जत वाली और बड़े मकाम वाली। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, उसको पाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, दुख मुसीबत में खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए। इसके आगे और कोई बात नहीं, वफादारी के बदले में हमें ताज मिलेगा, बस मैं ये कहूँगा। बिल्कुल ठीक है जी। वफादारी की जो बात हो रही है, बस अब आज कलीसिया में बड़ा फुकदान है कि हम बेवफाई को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लोग एक ही लम्हे में फिर जाते हैं। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब लोगों के घरों में प्रॉस्पेरिटी होती है, प्रोविज़न होती है और रेल पेल होती है चीज़ों की, और हर चीज़ आपके पास मौजूद है, रुपया पैसा है, बहुतात है, खुराक है, लिबास है, और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप प्रेज़ द लॉर्ड चर्च जा रहे हैं। लेकिन जैसे मुसीबतें आती हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों ने खिदमत छोड़ दी, बहुत सारे लोग डी ट्रैक हो गए, बैक स्लाइड हो गए, बरगश्ता हो गए। तो इस हवाले से क्या आप पैगाम देंगे आज लोगों को वफादारी पर? मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद पर सब वफादारी की हमने बात की कि जो वफादार रहता है उसकी बरकत हैं, लेकिन ये भी हमने देखा कि वफादार इंसान तब तक रहता है जब तक खुदावंद उसे बरकत दे रहा है, तब तक वफादारी उसकी नजर आ रही है। अयूब का भी आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया था। जी जी हाँ जी। लेकिन पर सब उसके बाद ऐसे लोग जो वफादार नहीं रहते, जो जाहिर ये करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो शो ये करते हैं कि जी हम बड़े वफादार हैं, दिखावे के लिए, वो दर हकीकत में अंदर से खोखले होते हैं। जाहिरी तौर पर उनकी खूबसूरती नजर आती है हमें, जैसे फर्नीचर कोई देख लें, वो ऊपर से अगर पॉलिश कर दें तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अंदर से दीमक ने उसे खोखला किया होता है। तो ऐसे ही वो बंदा है जो वफादार जाहरी तौर पर तो नजर आता है, लेकिन अंदरूनी आलम में वो वफादार नहीं। सही। इसका मतलब है कि वो अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं है, वो कमजोर हो चुका है। उसके लिए जरूरत है, अगर वो वफादार रहना चाहता है तो उसे अंदर से जरूरत है कि वो मजबूत हो जाए। और अंदर से फिर वो कैसे मजबूत होगा? उसे जरूरत है मसीह खुदावंद की वफादारी को देखने की। मसीह खुदावंद अगरचे दुख नजर आ रहे थे, मुसीबतें नजर आ रही थी, मसीह ने दुआ भी की, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मसीह की वफादारी ये है, मसीह ने कहा तो भी बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज अगर हम लीडर्स को देखते हैं या कोई उनके साथ भाई बहन होते हैं, वो नीचे कहते हैं जी पार साहब हम आपके साथ वफादार हैं, या कई दफा खादिम भी शो करवाते हैं कि हम वफादार हैं किसी अदारे के साथ या किसी चंद खादिमों के साथ, तंजीम के साथ। तो शो वो ये करवाते हैं कि हम वफादार हैं, लेकिन वो दुख जब आते हैं तो दुखों में से वो कहते हैं हम साइड पे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दुखों में वफादार रहना। जो जिंदगियां दुखों में वफादार रहती हैं, खुदावंद की बरकत उन जिंदगियों में रहती है। और जब हम अब्राहम की जिंदगी पर गौर करते हैं तो अब्राहम की जिंदगी में तो वो खुदावंद, उसे खुदा ने कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, तो वो खुदावंद के साथ वफादार भी है। लेकिन ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मेरे घर का जो नौकर है अलीअज़र दमिश्की, क्या मेरे बाद ये मालिक होगा? क्या ये सारी चीजें इसको मिलेंगी? जी जी जी। इसका मतलब है कि दुखों में, मुसीबतों में ये चैलेंज बन जाता है कि खुदावंद के साथ वफादार रहना। कई दफा दिल की बातें, जहन की बातें, इंसान का जहन में या इर्द गिर्द के माहौल की जो बातें इंसान के जहन में आ जाती है, कहता है, हालात को जब देखता है तो वो कहता है पता नहीं खुदावंद के साथ मैं तो वफादार हूं, पता नहीं अब खुदावन ये काम करेगा कि नहीं। जैसे अब्राहम कर रहा है, खुदावन ने उसे कह भी दिया है कि मैं करूंगा। इस बात की यकीन दहानी नहीं है। आज पर सब जैसे आपने की बात कि आज हमारे लीडर्स को जरूरत है कि वफादार रहें। सही बात है।
जब लीडर्स वफादार होंगे कलीसिया वफादार होगी, और कलीसिया जब वफादार होगी तो मसीह की दुल्हन तैयार हो जाएगी, और जब मसीह की दुल्हन तैयार हो जाएगी तो हमारा दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है। वाह, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। मुझे बड़ी अच्छी बात है कि याद आ रही है कि एक दफ़ा हमारे एक पास्टर साहब थे जो हमारे साथ खिदमत करते थे, तो किसी दोस्त ने उनसे पूछा कि आपकी जो अदारा है, आपकी जो मिनिस्ट्री आपको क्या दे रहे हैं? तो मेरा तो अदारा मुझे इतने पैसे दे रहा है खिदमत के लिए। तो उन्होंने कहा कि जी आप खिदमत किसकी कर रहे हैं? खुदा की। तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी ज़रूरतें अदारा नहीं पूरी करेगा, मेरी ज़रूरतें खुदा पूरी, क्योंकि मैं अदारे का खादिम नहीं, मैं खुदा का खादिम। तो उन्होंने कहा कि पास्टर खालिद नाज़र और उनके तंजीम जो कुछ आपको आपका अदारा दे रहा, मुझसे भी लेते जाएंगे ना इतने पैसे, तो फिर भी मैंने खिदमत उनके साथ ही कर। तो कई दफ़ा हम देखते हैं कि कई लोग रुपये पैसे की बुनियाद पर खिदमत कर रहे होते हैं और वो सदा वफादार नहीं रहते, लेकिन जो लोग ईमान और नज़रिए की बुनियाद पर आपके साथ हैं वो कभी आपसे अलग नहीं होंगे। और पर सब इसी बात पे जी मेरे उस्ताद पादरी काशिफ चांद साहब आपके दोस्त भी हैं जी, नई आबादी में वो खिदमत उन्होंने आगाज़ किया खिदमत का, तो उन्होंने बहुत सारे लोग गए, उन्होंने कहा हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आज भी लोग उन्हें कहते हैं पर साहब आपने क्या बनाया है, लोगों के पास ये हैं, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो ऐसी बातें उनके साथ कर रहे हैं। तो तब वो कह रहे थे, कहते कि बहुत सारे लोग आए जिन्होंने आकर मुझे कहा कि आप हमारे साथ खिदमत करें, लेकिन वो साइकिल पर खिदमत करते रहे उस दौर में, पैदल चलकर खिदमत करते रहे, चर्च बिल्डिंग भी नहीं थी, यहाँ तक कि चर्च की जगह भी नहीं थी, तो बड़ी वफादारी के साथ लोगों तक पहुंचते थे। जो उनके दोस्त जिनके अच्छे सेटअप थे, जिन्होंने अपनी अपनी मिनिस्ट्री बनाई हुई थी, वो उनके पास जाते थे कि आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको चर्च बिल्डिंग भी बना कर देंगे, हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे, ये भी करेंगे। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ, तो मैं एफजीए के साथ वफादार हूँ, तो मैं एफजीए के साथ ही रहूंगा। तो आज भी बहुत सारे लोग उन्हें कहते हैं जी आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। वो कहते हैं जो कुछ मुझे खुदावंद ने दिया मैं इस पर, आसमान की भी बात है ना, जो अजर की बात हो रही है, रिवॉर्ड की, तो उनकी बात हमेशा यही होती है, खुदावंद आसमान पर मुझे अजर देगा। तो आज खादिमों को जरूरत इस बात की है कि वो जमीनी शोहरत को छोड़ें। कुछ खादिम में सिर्फ उनका तवज्जो जमीनी शोहरत रहती है, चीजों के ताल्लुक हाँ जी, तो जमीनी शोहरत को, जमीनी चीजों को छोड़कर वो खुदावंद के पीछे हो जाए। जब हम खुदावंद के पीछे होंगे तो खुदावंद खुद ब खुद कुदरत रखता है, वो चीजों को करेगा, हाँ जी, वो हर एक चीजों को कलाम में लिखा है, जो चीजें नहीं है उन चीजों को ऐसे बुलाता है जैसे वो पहले से मौजूद है। खुदावंद नाउमीदी के अंदर उम्मीद पैदा करता है। सो आज जरूरत है खादमों को, लीडर्स को और चर्चिस को जरूरत है कि वो खुदावंद के साथ वफादार रहें, और जो खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं जिंदगी का ताज उनके लिए है। जो वफादार नहीं रहते, इसका मतलब है, जैसे पहले बात की, वो अंदर से खोखले हैं, इसका मतलब है जिंदगी का ताज उन्हें नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त फैसल साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आज इस टॉपिक और गुफ्तगू और कलाम की खूबसूरत जो बातें हमने की हैं, आप सबों ने बरकत हासिल की है। आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। पास्टर फैसल तशरीफ़ लाए, आप, बहुत शुक्रिया आपका। पास्टर जावेद, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, आखिर में मैं ये बताता चलूँ कि PMI टेलीविज़न जो आप देख रहे हैं, इसका YouTube चैनल भी मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रोग्राम्स जो हैं, अगर किसी तरह आप टेलीविज़न पर नहीं देख पाते तो आप YouTube पर भी इसको देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है PMI TV। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि PMI टेलीविज़न शब रोज़ दुनिया भर में खुदावंद की इंजील का प्रचार करने के लिए, इरशाद आज़म की तकमील के लिए मसरूफ़ अमल है। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace,